Hi guys, welcome back to my YouTube channel and in today's video we are going to talk about कर्णावती स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन लोगों के लिए जो डेंटिस्ट एज अ करियर परस्यू कर रहे हैं। सो टुडे वी हैव यश ओवर हियर हु विल बी हेल्पिंग अस टू नो एवरीथिंग अबाउट कर्णावती, हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस, कैसा था ओवरऑल कॉलेज, कैसे प्लेसमेंट्स थे, सब कुछ। सो ये वीडियो एंड तक देखना। हाय यश, हाउ आर यू? I'm good. I'm good. Okay. How are you? I'm good too. I'm good too. So let's get started and so let's talk about you. Like, could you please give us your introduction? Yeah, uh, I have completed my BDS from Karnataka School of Dentistry. I was in the batch of 1823. After that, I started my own clinic, and I'm working as an state head for a company named Flash Aligners. Okay. So I handle the market for MP. Why dentistry? Why did you choose dentistry as a career? Like, what was that thing that motivates you? Just liking. It's just about your preference of whatever you want to choose. Just whatever you feel you want to choose, you should just pursue it, irrespective of it's hard, easy. It is not that much concerning. Whatever you feel you can do it, just do it. Once you decide it, just fall for it. So let's talk about the entrance exam of Karnavati University. Of course, you have given, entrance exam for different colleges. So how was the experience and what was your aim when it comes to dentistry? What do you think, like, which college is best in India? So, any colleges for dentistry specifically, unlike other colleges, we don't have a different college exam. We have universal, all India, we have only one exam called as NEET. So we have to appear for it, and according to your cutoff, you have to choose your colleges where you get your seat and where you can apply, and which is your preference. According to your marks, you get your college stuff. So there is no college ka direct interference in our selection or getting our seat. It's the government who gives us or allots us the seat. Yeah. So everyone has that, thinky government, you should get in government dental college. But there are only 2 government dental college in Gujarat. Okay. So, yeah. Which are they, if you could name? Government Dental College, Ahmedabad, Government Dental College, Jamnagar. So let's talk about Karnavati University now. I was also in Karnavati University, if you guys have seen my other videos. So how was it like? Was it tough to get into Karnavati University? This is my first question. And second, how was the overall experience over there? Like, it's the degree was of 4 or 5 years, if I'm not wrong. So how was the overall experience? Yeah. It was for 5 years. The degree was for 5 years, and it was a very beautiful journey. I would say the best period of my life I would ever experience would be that 5 years. Okay. Because it's all about friends, family, learning, enjoyment, everything. So it was like our home, because we were not from this city. We didn't belong to this city. So, we had made that thing as our home for 5 years. Every, faculty was like our family. Every person in this college or university, not in dentistry, apart from that, was friends, more than friends, I guess. So it was a beautiful journey, and it's not that tough getting into Karnataka University. Okay. It's good. It's just the preference you choose. But yeah, you get to, rather than learning and things, you get to learn life in Karnataka actually. So it's not about learning and something, but you'll get to learn a good lavish life in
It's more about fun, of course. Karnavati is more about fun. But like, did you got like hands-on experience on things that you were doing? Like, So see, Karnati is a private university, unlike government dental college and something. So here the fees were high. Definitely, it was very high compared to other colleges. And if the fees were high, the facilities which were provided to us were also some another level. yeah. So good level, yeah. So in government, like people are always die to go in government college, and it is must. It is good, but it is no harm coming and studying here also. Why? Because we had got a hands-on on the most advanced thing. Yeah. Most advanced equipments were there in our college, and yeah, so it was good. We got a good amount of hands-on, and it's only key how much you want to take from college. College is there to teach you, give you patience, but it's upon how you take it. Like many people just they are like, okay, हमको नहीं करना है, हमको घूमना है, तो फिर पेशेंट नहीं मिलेगा. तो तुम गवर्नमेंट में भी जाओगे तो भी तुम्हें पेशेंट नहीं मिलेगा. And if you want to really do some work, then this is also a good place to work. If you could share your experience of 5 years, like actually में क्या क्या होता था? When it comes to dentistry, of course, बहुत hands-on experience चाहिए, patients चाहिए जिनके ऊपर you can see things, try things. तो वो सब रहता था या like what Karnavati has provided you like when it comes to this field? So see, the people who are teaching over here in Karnavati, the faculties are not that teachers, they are doctors who are teaching us. Okay. So their main profession is doctor, right? मतलब शायद वो आपको लेक्चर्स या वो सब तो होता है, बट जो असली चीज होता है ना, या दैट इज द प्रैक्टिकल थिंग वेर यू गेट. सो उसमें आपका हैंड्स ऑन और वो सब ज्यादा अच्छा रहता है. एंड वी हैड अ गुड पेशेंट फ्लो बिकॉज आजू बाजू पूरे गांव थे. इट इज एक हम कैंप्स भी रखते थे, काफी कुछ था. तो ओवरऑल ऑन द प्रोफेशनल बेसिस इट वाज वेरी गुड. प्लस मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हम व्हाट कर्नावती taught us apart from this thing, what you call dentistry, कि you have to maintain that standard of living. कि जब से हम बाहर निकले ना, we can't settle for less. वो हम एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन लोग ने. कि भाई ओके, आप अगर आई एम गिविंग अ वेरी वेग एग्जांपल कि अगर आप मतलब गवर्नमेंट में जाओगे तो आपको शायद 10 रुपीज 20 रुपीज में ट्रीटमेंट होता था. इधर हमारा 1000 रुपीज में ट्रीटमेंट होता था. इधर एक पेशेंट आता था, गवर्नमेंट में 10 पेशेंट आते एक घंटे में. तो you are earning of हमें वही हो गया या वे मोर. तो हमें वही सिखाते थे कि एक पेशेंट करो बट अच्छा करो एंड गिव दैट क्वालिटी टू देम. तो वही होता है कि आप या तो क्वांटिटी करो या तो क्वालिटी करो. तो क्वालिटी हमें इधर सीखने को मिला. एंड ऐसा नहीं है कि वी आर लैक ऑफ हमने देयर इज अ माइंडसेट ऑफ पीपल कि हम गवर्नमेंट में नहीं पढ़े तो हमारा हैंड्स ऑन कम होगा, ये होगा. नहीं भाई, हमें पूरा लाइफ यही करना है. whole life we are only doing this dentistry till our 50-60 or how much is our age, we'll do this only. So it's not about hands on or something, but it's about the approach they have taught us. तो वो एक दिखाया हमने. Plus you have also studied in Karnavati, you also know the amount of like the quality of lifestyle they used to show us. वैसे भी डेंटिस्ट्री के तो स्टूडेंट्स ऐसे दूर से दिख जाते थे बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर यूनिफॉर्म कर्नावती में. सो दैट इज आल्सो अ डिफरेंट थिंग. तो व्हाट वाज मेन थिंग इज, ठीक है ये सारा चीज भी था, बट साथ में डिसिप्लिन दे हैव टॉट अस अ लॉट. सो वी वर like we could not keep beard for 5 years of our college. Because it is not allowed and it is not ethical. I have never seen it. मतलब कभी नोटिस नहीं किया ये चीज. Yeah, but अभी तो सब हो गया है. अभी no one gives that strictness. But when we were in the
college we had that strict professor, because वही था ना कि अभी faculties भी उतना वो नहीं करते, क्योंकि बच्चे थोड़ा भी बोल लो तो रो पड़ते, कंप्लेन कर देते, उल्टा फैकल्टी को कंप्लेन डाल देते. सो फैकल्टीज आर आल्सो नाउ कि ठीक है हम आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे. बट विथ अस दे वर लाइक नहीं. अगर मैं यही बोलता हूँ कि हम लोग जब भी पढ़ रहे थे ना, तभी जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे थे ना, वो भी धक्का, मतलब उनको भी ऐसे दे हैड नो अदर ऑप्शन अदर देन, या मतलब हमारा लेवल उन्होंने किया है. अभी का उन लोग का ऐसा है कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है तो हमें क्यों इंटरेस्ट है. That's the same thing, because we used to respect the faculty. So now that thing is missing. I guess some or the other way after this COVID batch, I guess तो वो चीज थोड़ा मिसिंग है लगता है. After 20, I guess the field is very unique. Yeah. So वो एक आपको डिसिप्लिन तो रहता ही है. मतलब आई डिडंट रिमेम्बर हमने कभी जीन्स पहन के हम लोग कॉलेज में गए, या कभी हमने स्लीपर्स पहन के कॉलेज में, नेवर. इवन पीपल यूज्ड टू मतलब ऐसे वो आ जाता था अंदर क्रांति की भाई डिजाइनिंग भी है, ऑल्सो डिजाइनिंग कॉलेज साथ में, कि डिजाइनिंग वाले जीन्स पहन रहे, डिजाइनिंग वाले ये कर रहे, तो हम क्यों नहीं. बाबा यू आर अ डॉक्टर, यू आर नॉट, you are becoming a doctor, you are always treating a patient, so you cannot be like this, you know, casual ki chalega ye wo. You have to wear proper clothes. Unlike uniform bhi nahi hota tha, to formals hota tha. For girls they had 3/4 tak ka kurti. Yeah, after 3 o'clock whatever you do it does not matter. Aap shorts mein ghumo, chappal mein ghumo, it was not. But before the college hours you have to be particular and disciplined. And ये क्यों जरूरी है? Because like in dentistry आपके मुंह में शायद एक राई का दाना भी फंस जाता है ना. राई का दाना is 0.1 mm. अगर वो भी फंस जाता है ना तो you feel discomfort कहीं ना कहीं. तो अगर हम लोग कुछ भी आपके माउथ में कर रहे हैं, ओरल कैविटी में कर रहे हैं, 0.01% का एरर भी रहेगा ना, so it will feel discomfort to the patient. So you have to be so much perfect, you have to be so much precise कि patient को वो ना होना चाहिए. So this is the reason discipline यहाँ आता है. आई गेस कर्नावती में वैसे ही बहुत डाइवर्स कल्चर था, क्योंकि डॉक्टर्स भी बढ़ रहे थे और यूआईडी के लाइक फैशन इंटीरियर के स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे थे, तो कल्चर बहुत डाइवर्स था. ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ दैट. सो दैट वाज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू थैंक कर्नावती की. इस चीज़ में तो अच्छा ही था, बाकी सब में व्हेन इट कम्स टू माय कोर्स आई डोंट फील कि बहुत ग्रेट था, बट ठीक था. मतलब फैकल्टीज़ वर गुड, सब कुछ अच्छा था, बट ठीक है, लाइक प्राइवेट कॉलेज से यू कांट एक्सपेक्ट टू मच, वो वाला बात है. सो कमिंग बैक टू दिस, लेट्स टॉक अबाउट, आई वॉन्ट यू टू आंसर लाइक 3 pros ऑफ द कॉलेज एंड 3 cons ऑफ द कॉलेज दैट यू फील कि यू नो ये सब चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी, एंड ये चीज़ें जो समवेयर कर्नावती लैक्ड व्हेन इट कम्स टू योर कोर्स. I guess see honestly हमारे उसमें कुछ लैक नहीं किया था, because whatever we are today we are because of our college. So there were always pros. ठीक है, अगर I have to pinpoint like something, वो नेता की opposition नेता की तरह मेरे को अगर वो pinpoint करना है तो there are 1000 points I can say, but yeah there is no you know this thing. But yeah, first thing it was private university, second thing it had that you know a culture was there to कि एक रखा था, हमें डिसिप्लिन में रखा था. प्लस दे वुड प्रोवाइड अस, मतलब अगर जो काम कर रहे हैं ना तो उनको वो 100% जो कर रहा है उसको प्रोवाइड करेंगे. मतलब इफ यू वांट टू वर्क एंड इफ यू आर विलिंग टू वर्क दे विल ऑलवेज गाइड यू एंड दे विल ऑलवेज हेल्प यू. तो वो चीज था हमेशा हमारे लिए. वी ऑलवेज थैंकफुल. एंड second thing, the best part was I got some friends from that college. Yeah, okay. Which I'll always cherish throughout my life. So nice, wonderful. So let's talk about the fees of the course,
like what was the fees of 5 years, including like you were not from Ahmedabad or Gandhinagar, so what's the hostel fees and what was the overall fees for your course that you have spent for 5 I years? don't remember. Hey, of course you remember Initially यार, it was पैसा देते तो no. हॉस्टल फीस वाज लाइक मेस का 50,000 था और हॉस्टल का 50,000 था, ऐसा कुछ था, 50-80,000 था. बट या कोर्स फीस वाज 3,60,000 पर ईयर 3 लाख पर ईयर per दोनों year. सेम का. Yeah. So 4 years it was around, मतलब सब ओके, पर ईयर 5 लाख जितना आता था. So somewhere around 25 lakhs. या 20-25 4 इयर्स तक का एक कॉलेज का फीस होता है. फिर 5th ईयर इज इंटर्नशिप. So around ये नहीं आइडिया था यार, 22 lakhs. थोड़ा सा डिटेल में बताना ना सब कुछ इंटर्नशिप्स के बारे में भी, सो दैट समवन इज वाचिंग उसको आइडिया हो, बिकॉज आई डिडंट न्यू. तो लोग जो कर्नावती में आने वाले डेंटिस्ट्री के लिए Yeah. दे विल आल्सो नॉट नो. so in dentistry first year, मतलब in total it is 5 years of college. First year, second year, third year and final year. Fourth year is the final year. ओके. So उसमें से थर्ड ईयर तक सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं जो मेडिकल में भी होते हैं. ओके. सो एक डाउट जो मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई बोलते है कि यू आर नॉट डॉक्टर, तो वो चीज इधर क्लियर हो जाता है कि हमें भी पूरा मेडिसिन भी आता है. वी ऑल्सो नो द होल बॉडी. हमें भी फर्स्ट ईयर में वी ऑल्सो हैड डाइसेक्टेड अ फुल ह्यूमन बॉडी. इट्स नोन एज कैडेवर. तो हमने भी पूरा किया हुआ है. एंड फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स एमबीबीएस से सेम होते हैं. फिर वो धीरे धीरे डेंटल के साथ डेंटल सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं. और फाइनल ईयर में जैसे एमबीबीएस में पीडियोडोंटिक्स पीडियाट्रिक होता है, हमारे में पीडियोडोंटिक्स होता है. और ऑर्थोपेडिक होता है, हमारे में ऑर्थोडोंटिक्स होता है. उसमें जनरल सर्जरी होता है, हमारे ओरल सर्जरी होता है. सो इट इज डिवाइडेड, ऐसे हो जाता है. तो फाइनल ईयर में इट इज टोटल 8 सब्जेक्ट्स ऑफ दिस. या एवरी ईयर का एग्जाम रहता है हर साल. एंड फाइनल ईयर इज द मेन थिंग. इफ यू क्लियर इट इज गुड. फिर भी आपको एक क्लीन चिट नहीं मिलता जब तक आप 1 साल का इंटर्नशिप नहीं करते हो इन एवरी डिपार्टमेंट. हमारा एक रोटेशनल इंटर्नशिप होता है और एक कोटा होता है कि यू हैव टू डू स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ पेशेंट्स, इतना हमको करना रहता है. तो उसके हिसाब से वो सारा कंप्लीट होता है. फिर एक एनओसी साइन होता है. वो अगर वो एनओसी साइन होता है देन वी गेट आवर डिग्री. और वो भी हमें गवर्नमेंट में जाके एफिलिएट करना पड़ता है. सो वो होता है ना कि बिकॉज यू आर ट्रीटिंग अ लाइव पेशेंट, यू कांट बी दिस यू नो, आप उसको मजाक में ले सकते हैं. यू कांट गिव अवे डिग्री टू एनीवन एंड एवरीवन. सो मेनी ऑफ आवर पीपल वर डिवाइडेड कि भाई आपने इतने डेज नहीं किए, आपने इतने पेशेंट नहीं किए, यू स्टे इन द कॉलेज. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉलेज उनको एनओसी नहीं मिला था. दे हैड टू ओवरस्टे फॉर अ मंथ और 2 एंड दे डिड कंप्लीटेड दैट कोटा. उनको कंप्लीट करा एंड देन दे वर गिवन द एनओसी. सो इवन if it is a private university, it is not that strict. मतलब it is that strict. आपको वो लिबरल नहीं मिलता है. और वो हमको सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट में रजिस्टर करने के लिए. फिर we get our license and then we can work. मोस्टली लाइक हर स्टूडेंट को डिग्री मिल ही जाता है ना. इट्स नॉट लाइक कि दे बांट कर देते हैं या फिर. But no, if you are not clearing 4 years in exam, I have my batchmate, 1 or 2 batchmates, they are still struggling to get pass. And it is around, I have completed 2 years. Now it's 2 years I have completed my college. They are still, I guess, in 4th or 3rd year or 4th year. वो अभी तक फेल ही होते जा रहे हैं, होते ही जा रहे. तो वो नहीं होता इतना. मतलब मिल जाता अगर आपको. सी इट्स लाइक अ टनल. अगर आप आए हो तो आप निकल तो जाओगे, बट इट इज अपॉन यू. आप जल्दी निकलते हो या बाद में निकलते हो. ओके. या तो फिर आप छोड़ दो. ये 3 चीज होता है. या तो आप कॉलेज छोड़ दो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो आप पूरा कंप्लीट करो, या तो आप
try till you don't complete one. And how do you get internships? Like college provide करता है internships या you try to reach out to people? कॉलेज के साथ ही कॉलेज के साथ ही होता है ना, हॉस्पिटल होता है हमारा ना, तो कॉलेज के अंदर ही हमारा हॉस्पिटल होता है। ओ अच्छा, हाँ ये आइडिया है मेरे को, बट लाइक आई थॉट कि यू गो टू लाइक अदर प्लेसेस टू डू इंटर्नशिप्स ऐसा, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स डू इंटर्नशिप। या रोटेशनल रहता है ना, 100 स्टूडेंट्स रहता है तो 18 का बैच पड़ जाता है, 9 डिपार्टमेंट होते हैं। ओके, तो 18 या 19 का बैच होता है, तो 28 डेज और 32 डेज का ऐसे रहता है, वो एक टर्म रहता है। आई डोंट रिमेम्बर व्हाट डेज, एग्जैक्ट डेज, बट वो एक टर्म रहता है एंड यू हैव टू अटेंड इट। पोस्टिंग रहता है हमारा कि आज इधर पोस्टिंग हुआ, आज उधर पोस्टिंग हुआ, ऐसे 1 मंथ का पोस्टिंग एक डिपार्टमेंट में, फिर सेकेंड मंथ दूसरे डिपार्टमेंट में, ऐसे टोटल ABCDEF पे बैच रहता है, तो बैच भी रोटेट करते हैं। तो एवरीवन हैज टू गो थ्रू दैट। कि अगर रूट कैनाल है तो मेरे को भी रूट कैनाल 10 करने ही पड़ेंगे, अगर छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट है तो मेरे को भी छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। आई कांट फ्लिक ऑफ। अगर एंड वो भी होता है कि इंटर्नशिप में अगर आप चलो पेशेंट नहीं कर रहे हो फिर भी फाइन, बट अटेंडेंस इज कंपलसरी। अगर आपका 90% से कम इंटर्नशिप में अटेंडेंस है तो आपको नहीं मिलता, वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता, NOC नहीं मिलता। So you have to be every time particular. So let's talk about the placements and also let's talk about the fees in terms of ROI. कि you have spent almost 20-25 lakhs for the whole degree. तो what do you think कि placements होते तो कैसे देते हैं कर्नावती यूनिवर्सिटी? Honestly speaking, हमारे में placement का option ही नहीं रहता, because you have to open your own clinic. Everyone? Yeah, either you मतलब कॉलेज के बाद it's upon open ground, आप क्या करते हो, आप किसी के वहाँ जॉब करते हो, there is no particular ऐसे कोई MNC कंपनी नहीं है कि जहाँ को प्लेसमेंट मिलेगा और आप उधर मतलब समझ रहे हो, you will get a pay scale of 10 lakhs per annum or 20 lakhs per annum, नहीं। But you can choose, like you can reach out to people and do this thing. Yeah, you can definitely. That is irrespective of college का perspective, उसमें कुछ आता नहीं है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। Now you are a doctor. Now you have to choose where you want to go. So see, take me as a personally. I have also doing my clinical practice. I am also working in a corporate thing. तो वो क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल दोनों भी होता है, so you get a good salary, you get a good return. Yeah, but eventually अगर आप देखने जाओगे ना तो क्या होता है, ये बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों को कि डेंटिस्ट्री में पैसे नहीं है। If थोड़ा टाइम आप दे दो, मतलब होता है ना कि you are 25-26 still you are earning 8,000, 9,000, 10,000 नहीं मिल रहे ऐसे, because you work at some clinic. तो हाँ, तो होता क्या है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है मोस्टली सब में कि हम खुद नहीं खोलेंगे, या लैक ऑफ फाइनेंशियल एड होता है कि इतना सारा पैसा डाल दिया तो वी कांट ओपन आवर ओन क्लिनिक, सो वी हैव टू डू अ जॉब। तो इफ यू डू अ जॉब एट सम क्लिनिक तो आपको 10-20 हजार से ज्यादा नहीं मिलेंगे। बट अगर आप क्लिनिक खोल रहे हो अपना, आप बेसिक मतलब फालतू से फालतू क्लिनिक भी 50,000 पर मंथ कमा लेता है, 30 to 50,000 कमा लेता है, एंड इट कैन रीच टू 10 लाख। जो ऐसे अच्छे खासा अगर 10-15 साल निकाल लो तो महीने के 10 लाख भी आप निकाल सकते हो। सो इट इज दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो मैं वही बोल रहा हूँ, वो मिसकंसेप्शन रहता है, स्टार्टिंग में बोल रहे हैं पैसे ही नहीं है डेंटिस्ट्री में, ये नहीं है वो नहीं है, बट नहीं, वो ऐसा नहीं है, पैसे है। यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस, यू जस्ट नीड टू हैव दैट विजन एंड फोकस कि आपको कैसे जाना है, आपको क्या करना है। अगर आप वो नहीं करते हो, अगर आप वो नहीं मतलब इफ यू डोंट हैव विजन एंड वो अंदर से आपको अगर नहीं होगा तो यू कांट अर्न इन डेंटिस्ट्री ऑनेस्टली। फिर देन दे गो टू अदर कंट्रीज, तो जाके कोर्स करेंगे एंड या करते हैं।
So many of my friends went to different countries. Outside the countries, they still say कि नहीं भाई, अभी इधर मेहनत करो या उधर मेहनत करो, सेम ही है. Don't follow that भीड़. ऐसे एक जा रहा है तो मेरे को भी जाना है. वो एक होता है कि अगर if समझो you are going, नहीं मैं भी कनाडा जाऊंगा या मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा या मैं भी अहमदाबाद में तो एक वैसे भी बहुत है ये क्रेज बाहर जाने का. So if you really want to go, then you go. हाँ, मास्टर्स में भी ये सेम चीज है कि अगर इसने मास्टर्स किया तो मेरे को मास्टर्स करना है. क्यों करना है भाई? You should analyze yourself कि आपको क्या करना है. You want to further study, आपको एक उस फोकस में जाना है, आपको कैसे करना है. तो या बहुत सारी चीजें होती है. In terms of earning also, it is you know, I don't think like people feel कि इधर पैसा नहीं है, but I make good money out of it. हाँ, एक्चुअली क्या है कि डेंटिस्ट्री में तो वैसे भी ऐसा होता है कि आपका इफ़ आई टॉक फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, तो मेरे को ऐसा है कि वो एक डेंटिस्ट है, मैं उनके पास ही जाऊंगी, उसके अलावा आई कांट स्विच लाइक यू नो, क्योंकि वो ऐसा है. तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस मेरे को लगता है, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो दे कैन गिव यू यू नो गुड, लाइक वो क्वालिटी होता है काम में भी, और वो लाइक और भी एक्स्ट्रा एडवाइस देना व्हेन यू गो टू डेंटिस्ट कि यार ऐसा नहीं, आपको ऐसा भी प्रॉब्लम है, वो सब. तो लाइक एक एक्स्ट्रा एडवाइस भी मैटर करती है. और इसमें एक्सपीरियंस का खेल है यार, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस यू हैव तो उतना ज़्यादा यू मेक मनी, ऐसा भी है. एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स योर पेशेंट. मतलब मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट आई हैव सीन पीपल, काफी जगह है, आई हैव बीन सेइंग दिस टू मेनी पीपल एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट कि भाई I have, if you visit some dentist, तो वो खुद ही सारी लाइट बंद करके बैठा है, हेड डाउन करके बैठा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है. एंड यार वो होता है एक वाइब आता है, वो नेगेटिव वाइब आता है. हाँ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है आप बैठो, चिल्लाओ मत, ये यू नो. सो वो एक आपसे भी, एक डॉक्टर से भी वो वाइब ट्रांसफर होता है पेशेंट पे. तो होता क्या है कि अगर आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपके पेशेंट को थोड़ी इंटरेस्ट है आप में. सी व्हाट मैटर्स इज यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन पास्ट आल्सो कि जब भी आप छोटे होंगे, आप किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, ये डॉक्टर सिर्फ एक नॉर्मल आपको चेक करेगा एंड घर आते ही इज फाइन. सो काफी बार बोलते हैं कि डॉक्टर का चेहरा देख के ही इज ओके. एंड मेनी टाइम्स मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूँ, आपको कोई भी ये होता है पेन वेन रहता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं डोलो ले लो या ये ले लो, एक गोली ले लो. सो दैट इज व्हाट इट इज साइकेट्रिक. मतलब वो एक जो डोलो आप गोली लेते हो, इट इज एंटीपायरेटिक. एंटीपायरेटिक इज फीवर का गोली. ओके, अच्छा, ओके, हाँ, डोलो तो लाइक डोलो. इट इज नॉट अ पेन किलर. हाँ, इट इज नॉट पेन किलर. पेन किलर इज दूसरा गोली, वो पैरासिटामोल और डोलो. हाँ. तो आप अगर, मैं बोलता हूँ ना, अगर आपको पेन होता है तो आप ये ले सकते हो. एंड मतलब एक साइकेट्रिक होता है, मेरे को भी पता है पेन नहीं है. काफी बार ये होता है, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, दे आर लाइक मतलब मैं ट्रीटमेंट कर लिया एंड वो एक थोड़ा साइकोलॉजिकल होता है कि नहीं इट्स पेनिंग. मैं कुछ नहीं करता है, जस्ट थोड़ा हाँ होता है, मैं देख रहा हूँ ये वो, इट्स फाइन. एंड नेक्स्ट डे दे विल कम, मेरे को पेन नहीं है. मे बी लाइक वो मन में रहता है ये कि है. या एग्जैक्टली, इट्स जस्ट कि नहीं मेरे को डॉक्टर को दिखाना है. हाँ हमने देख लिया, आई जस्ट हो गया. So it's upon your particular approach about how you talk to your patient. You should keep always smiling. आपका गुस्सा आपके फेस पे नहीं दिखना चाहिए, आपकी थकान आपके फेस पे नहीं दिखनी चाहिए, because it is irrespective to the patient कि आपका मूड कैसा है. भाई उसको तो दर्द हो रहा है ना, तो आप गुस्सा हो उससे, उसको क्या, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप झगड़ा करके घर पे हो, उससे क्या उसको.
अगर if you show your emotions to your patient, then it is you are not a good doctor. If you want to be a good doctor, you have to be always cool, calm, composed, and honestly वो patience level होना चाहिए कि मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर छोटा बच्चा कोई जा रहा है, मतलब any one of a kid is injured or something, the family members will be very aggressive. आप देखते क्यों नहीं हो, आप ये देखो, अरे बाबा उसको स्टेबल करना पड़ता है, then we have to see. तो उस टाइम उसके पेरेंट्स का एक एंगर लेवल या वो एक एंजाइटी लेवल पीक पे होता है. तो यू कांट बी सामने की हाउ डिड यू से मी दिस, हाउ कैन ही अटर मी लाइक दिस, आई एम अ डॉक्टर, आई एम दिस. नहीं, यू हैव टू बी वेरी कूल, काम, कंपोज्ड. एंड या देखो, आपका जो भी लैंग्वेज हो, आपका जैसा भी टोन हो, आफ्टर यू स्टेप आउट ऑफ योर क्लिनिक इट्स फाइन. अब कितनी भी गाली बोलो, आप कुछ भी करो, इट्स फाइन. बट व्हेन यू आर ऑन अ क्लिनिकल बेसिस, इफ यू आर ऑन अ दिस थिंग, you have to control your anger, you have to be patient enough, you have to be very much this ki cool, calm, composed, ki bhai it is our duty. Three चीज, you can't be intoxicated, unlike it shows in movie ki bhai he is drinking and coming and doing a surgery. No, you can't. It's just movie things. It's all it is not true. If you can't cheat your profession, honestly. Okay. If you want to be good and you want to earn, because that thing is going to make money out of money to you, so you have to be always professional enough. And यार सीधी बात है ना, आप लोग भी कभी ऐसे शॉर्ट बाहर करके कहीं नहीं जाओगे. When you are working out, you can't. भाई मैं आपको डिसिप्लिन का बोल रहा था ना कि why we were, मतलब स्ट्रिक्टनेस था कि जीन्स नहीं पहनने का, फुल कुर्ती पहनने का. सी, अगर मैं खुद एज अ डॉक्टर, मैं वही आपको क्योंकि एक वो कनेक्टिंग डॉट है, मैं खुद अगर सैंडो पहन के बैठा हूँ, इधर टैटूज है पूरे हाथ में, हेडफोन लगा है, and I'm sitting on a dental chair, क्लिनिक के उस बाजू. You as a patient coming to me, you'll come to me, no doubt. One time you'll come to me, I'll be like, yo, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, I don't have control over my language, nor over my speech. What you will say, इसको खुद ही नहीं संभल पा रहा है, ये मेरे को क्या संभालेगा? Okay, so just to wrap this up, this will be my last question. So, do you think it's all worth it to get into Karnavati University and be a part of this course? And also, what are your plans for now? Like, you have done your course in dentistry, so what are your plans? Like, what are you currently doing and what are you aiming for? So, these will be my two questions. Yeah, so it is worth taking in Karnavati. Unless if you want to get success, you want yourself to grow, it is very good, honestly. And yeah, my plans is I want to I will start my own clinic right now in next few months. I want to really grow chains of clinic, dental chain. I want to grow my dental clinic. Yeah, so I've been working on it. It will take some time, but yeah. All right. Thank you, Yash. Thank you so much for being a part of this video. I think it's going to be very helpful for students who want to come to this college. So thank you so much.